اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور پیش خدمت ہیں سورہ آل عمران کی تفصیلات و تشریحات۔ آج کی نشست میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 شامل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف دوڑو جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، وہ پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ناظرین، وَسَارِعُوا السُّرْعَةٌ تیز ہونا، جلد واقع ہونا، تیزی، جلدی، یا پھر سرو وہ تیز ہوا اس نے جلدی کی۔ السرعان من الخیل آگے نکل جانے والے گھوڑے کو کہتے ہیں۔ ابن فارس رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی جلدی کرنے کے ہوتے ہیں۔ پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 199 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد ہی حساب لینے والا ہے۔ اسی طرح پارہ نمبر 26 سورہ قاف آیت نمبر 46 میں ارشاد ہے یوم تشقق الارض عنہم سراعا، جس دن زمین پھٹ جائے گی ان کے اوپر سے جلدی سے نکل پڑیں گے۔ چنانچہ سارا مسارعۃ سراعا سب کے معنی جلدی کرنے کے ہیں، ایک دوسرے سے سبقت کرنا، دوڑ کر جانا۔ اور ایک لفظ یہاں پہ استعمال ہوا ہے عرضو، اس کے معنی ہے کسی چیز کا ظاہر ہو جانا یا کسی کے سامنے پیش ہونا۔ جیسا کہ پارہ نمبر 24 سورۃ المومن آیت نمبر 46 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، دوزخ کی آگ کو پیش کیا جاتا ہے ان پر صبح و شام۔ عرض لہ کذان، ایسا ماجرا پیش آیا، سرسری طور پر کوئی چیز نظر آئی۔ عرض علیہ کذا، عرض علیہ کذا، اسے فلاں چیز دکھائی دی۔ العارض وہ چیز جو تمہیں پیش آئے یا تمہارے سامنے پیش آئے، وہ بادل جو افق میں پھیلا ہوا ہو۔ العرض کسی چیز کی چوڑائی کو بھی کہتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں جنت کے متعلق پارہ نمبر 27 سورۃ الحدید آیت نمبر 21 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور وہ جنت جس کی وسعت اور کشادگی تمام ارض و سماء یعنی ساری کائنات جتنی ہے۔ تاج العروس میں العرض کے معنی ہیں گھر کا سامان، مال و دولت، جیسا کہ پارہ نمبر 9 سورۃ الاعراف آیت نمبر 166 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے یاخذون عرض ھذا الادنی، وہ حاصل کر لیتے ہیں مال اس دنیا کا۔ اسی سے ایک معنی قدر و قیمت بھی ہیں۔ علامہ راغب رحمۃ اللہ علیہ نے العرض کے معنی ناپائیدار شے بھی لکھے ہیں۔ اس طرح قرآن مجید میں عرض کا لفظ کئی اور معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، تاہم مذکورہ آیت میں
मौजू के एतबार से मुअख्खर ज़िक्र दोनों मानी मुराद लिए जा सकते हैं। वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्दु उइद्दत लिल मुत्तक़ीन, और अपने रब की बख्शिश और उस जन्नत की तरफ दौड़ो जिसका अर्ज आसमानों और ज़मीन के बराबर है, वो परहेजगारों के लिए तैयार की गई है। जन्नत की तरफ दौड़कर आने का यही मकसद है कि ऐसे काम किए जाएं जिनसे जन्नत का हुसूल मुमकिन हो। और जन्नत की सिफत ये बयान की गई कि इसका अर्ज आसमानों और ज़मीन जितना है, और जैसा कि लुग़वी मानी में मैंने ज़िक्र किया है कि अर्ज के एक मानी चौड़ाई के हैं। इस लिहाज से इसका मतलब यह होगा कि जब आसमानों और ज़मीन की वुसअत का अंदाज़ा करना इंसान की बसात से बाहर है, तो फिर वो जन्नत की वुसअत का क्या अंदाज़ा कर सकेगा जिसकी चौड़ाई आसमानों और ज़मीन के बराबर है। गोया इससे मकसूद जन्नत की ऐसी लामहदूद वुसअत का अजहार है जो इंसान के सानो गुमान में भी नहीं आ सकती। नाज़रीन, हज़रत पीर करम शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि बाज़ का ख्याल है कि जन्नत की चौड़ाई फिल वाक़या इतनी है जितना आसमानों और ज़मीन का मजमूई रकबा है, और चौड़ाई की फराखी और वुसअत का ये आलम है तो उसकी लंबाई का क्या कहना। लेकिन उलमाए लुग़त व अदब की राय है कि लम तक़सुदुल आयत तहदीदुल अर्द वलाकिन अरादा बिज़ालिका इन्नहा औसअ शैइन राइतमुहु, यानी यहाँ जन्नत की अर्ज की मसाहत को आसमानों और ज़मीन की मसाहत के बराबर साबित करना मकसूद नहीं, बल्कि बतरीका इस्तारा ये बताना मकसूद है कि जितनी वुसअत का तुम तसव्वुर कर सकते हो जन्नत उससे भी ज़्यादा वसी तर है। नाज़रीन, अर्ज का दूसरा मानी कदर व कीमत है। कहते हैं इश्तराइतुल मताउ बिअर्ज़ि, और इन मानों में ये लफ्ज़ कुरान में भी मुस्तमिल है। जब दुनिया की बेसबाती का अजहार मकसूद हो तो दुनियावी साजो सामान के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। इस लिहाज से इसका मानी ये होगा कि इस जन्नत की तरफ दौड़ कर आओ जिसके मुकाबला में ये सारे आसमान और ज़मीन हेच हैं, और जन्नत की कदर व कीमत उनसे बढ़कर है। ऐसी आयात से ये भी मालूम होता है कि जन्नत और दोज़ख तैयार की जा चुकी है, और इसमें उन लोगों का रद्द है जो इस बात के कायल हैं कि जन्नत और दोज़ख अभी तैयार नहीं बल्कि क़यामत के बाद कायम की जाएगी, या फिर जन्नत और दोज़ख यहीं आलम शहूद में है। आलम शहूद से मुराद हमारी ही दुनिया जो आज हम जिसमें बसते हैं। लोगों का ख्याल है कि जन्नत और दोज़ख यहीं पर मौजूद है। हर इंसान अपने अच्छे और बुरे आमाल के बायस दुनिया में जन्नत के मज़े लेता है या दोज़ख का अजाब भुगतता है। नाज़रीन, एटॉमिक साइंटिस्ट इंजीनियर सुल्तान बशीर महमूद साहब लिखते हैं कि अभी तक जन्नत कहाँ है। इस सवाल के जवाब में बहुत इंतशार यानी कन्फ्यूजन पाया जाता है। बाज़ कहते हैं कि जन्नत आसमानों पर किसी सैयारे में मौजूद है, और बाज़ कहते हैं कि जन्नत का लफ्ज़ी मतलब बाग है और ये ज़मीन पर ही मौजूद है। बाज़ कहते हैं कि जन्नत क़यामत के बाद बनाकर लाई जाएगी। इसी तरह दोज़ख के बारे में कई बातें की जाती हैं, जबकि हकीकत अल्लाह ताला ने आयत मज़कूरा में बिला शक व शुबा वाज़ेह कर दी है। व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्द, और जन्नत का अर्ज तमाम आसमानों और ज़मीन पर फैला हुआ है, और ये उइद्दत लिल मुत्तक़ीन तैयार की गई है मुत्तक़ीन के लिए। अगर जन्नत का अर्ज इस आसमान और ज़मीन वाली कायनात के बराबर है तो फिर या तो ये सारे की सारी कायनात जन्नत है या ये इससे कोई मावरा हकीकत है।
जिसका हुजम इस कायनात से भी बड़ा है। अहादीस करीमा से भी पता चलता है कि जन्नत के दरख्त, उसके मकानात, फल और फूल भी ज़मीनी चीज़ों की निस्बत से बहुत बड़े हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अगर जन्नत इस कायनात में नहीं है तो फिर कहाँ है? अब या तो ये एक मतवाजी कायनात है जिसके अपने ही ज़मानो मकान है और ये इस कायनात से बाहर वाक़या है। हमारी कायनात की वसअत इस कदर है कि अगर रोशनी अपनी 1,86,000 मील फी सेकंड, लगभग 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से चलती रहे तो एक सिरे से दूसरे कोने तक कई खरबों सालों में भी ना पहुंच पाएगी। तो इन वसतों को रूह यानी फरिश्ते वगैरह कितनी रफ्तार से तय करते होंगे, पल भर में मंजिल मकसूद को पहुंच जाते हैं। पारा नंबर 30 सूरतुन नाज़ियात आयत नंबर 1 से 5 में इरशाद बारी ताला है, वन नाज़ियात गर्कन वन नाशितात नश्तन वस्साबिहात सबन फस्साबिकात सबकन फल मुदब्बिरात अमरा। कसम है फरिश्तों की जो गोता लगाकर जान खींचने वाले हैं और बंद आसानी से खोलने वाले हैं और तेजी से तैरने वाले हैं, यानी तेजी से तैरते हुए आते हैं। फिर तामील इरशाद में दौड़ कर सबकत ले जाने वाले हैं, फिर हस्ब हुक्म हर काम का इंतज़ाम करने वाले हैं। इसलिए जन्नत कहाँ है? इस सवाल को समझने के लिए गैर महदूद जिहतों यानी मल्टी डायमेंशंस वाला नज़रिया ज़्यादा सही मालूम होता है। इसके मुताबिक हम अगर बुलंदी और चौड़ाई, लंबाई और वक्त वाली कायनात में रहते हैं तो इसी की मुत्तसिल दूसरी जिहतों यानी तरफों की दुनियाएं भी मौजूद हैं, यानी वो सब कुछ एक नुक्ता यानी पॉइंट पर मौजूद हैं जिस नुक्ता पर हम मौजूद हैं, लेकिन इनकी जिहत यानी डायमेंशन मुख्तलिफ है, इसलिए वहां पहुंच नहीं सकते। अगर किसी तरह कोई एक जिहत से दूसरी जिहत में दाखिल हो सके तो उसे मावराई दुनियाओं में जाने के लिए फासले तय करने नहीं पड़ते। जैसे किताब में अगली कहानी पढ़ने के लिए सफ़ा पलटना पड़ता है, टीवी पर स्टेशन बदलने के लिए फ्रीक्वेंसी के बटन को आगे पीछे करना होता है, या जैसे इंटरनेट पर इल्मी ख़जाना ढूंढने के लिए वेबसाइट का एड्रेस मिलाना पड़ता है, यानी टीवी या कंप्यूटर वहीं का वहीं रहता है, सिर्फ कमांड बदल दी जाती है तो नज़ारा यानी सीन बदल जाता है। जन्नत, जहन्नम और हमारी इस कायनात की मिसाल भी इसी से मिलती जुलती है। ये सब बैक वक्त तैयार हैं। जैसे कहा गया है कि जन्नत मुत्तकीन के लिए तैयार कर दी गई है, जहन्नम फासिकीन के लिए तैयार है। कायनात जिंदगी की आजमाइश के लिए मौजूद है। एक मकाम से दूसरे मकाम में भेजने के लिए सिर्फ अल्लाह ताला की कमांड की ज़रूरत है। कहीं नहीं जाना, कोई सफ़र तय नहीं करना, बस कमांड का इंतज़ार है। ज़िंदगी मौत में बदल जाती है, मौत बरज़ख में ले जाती है और बरज़ख के आगे जन्नत का पर्दा है। लेकिन ये सब कुछ अभी इसी वक्त इसी जगह मौजूद है। हमारी निस्बत से वो बातिन है और हम शऊर में हैं, यानी वजूद लावजूद से खाली नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे सिफर लावजूद में मौजूद है, लेकिन इसी में सब कुछ है, इस सिफर में सब कुछ है। ये सिफर तमाम मुस्बत हकायक और मनफी हकायक का मजमुआ है। मसलन 1 करोड़ मनफी 1 करोड़ सिफर होगा, लेकिन सिफर में यक वक्त ये दोनों मौजूद होंगे। अभी
साइंसदानों ने हिसाबी तरीका से यह नतीजा निकाला है कि किसी एक नुक्ता यानी पॉइंट पर जहतें 26 तक हो सकती हैं। यानी हमारी 4 जहतों यानी मशरक, मगरब, शुमाल और जनूब के अलावा 22 मजीद जहतें यानी तरफें मौजूद हैं। इन जहतों में हमारे मतवाजन कई एक दुनियाएं यानी पैरेलल यूनिवर्सेस भी मौजूद हैं। क्या मालूम कि आलम आराफ, आलम जन्नत, आलम जहन्नम उन्हीं में अपनी अपनी जहत में वाक़या हैं। मरने पर नफ्स जिसकी कसाफत से अलहदा होकर लतीफ़ हो जाता है कि वो आसानी से इन जहतों में दाखिल हो सकता है, लेकिन अल्लाह ताला के औलिया इकराम रहमतुल्लाह अलैहिम को जन्नत और आलम बरज़ख या आलम जहन्नम के हालात जानने के लिए मरने का इंतज़ार नहीं करना पड़ता, बल्कि वो जब चाहें अपने अरवाह को आज़ाद कर लेते हैं। जैसे हालत नींद में रूह जिस्म से अलहदा हो जाती है। पारा नंबर 24 सूरत ज़ुमर आयत नंबर 42 में इरशाद बारी ताला है, अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुसा हीना मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा फयुमसिकुल्लती कज़ा अलैहल मौता व युरसिलुल उखरा इला अजलिन मुसम्मा इन्न फी ज़ालिकल आयातिल लिक़ौमिन यतफ़क्करून। अल्लाह वो है जो रूहों को कब्ज़ करता है मौत के वक्त और नींद में, और वो मरने वालों की रूहों को अपने यहाँ रोक लेता है, लेकिन बाकी अरवाह को एक ख़ास मियाद के लिए उनके अजसाम में दोबारा भेज देता है। इस हकीकत में अहले फ़िक्र के लिए निशानियाँ हैं। बिल्कुल इसी तरह औलिया इकराम रहमतुल्लाह अलैहिम अपनी अरवाह को दूसरे आलमों में भेजकर वहाँ के हालात देख लेते हैं। कश्फ, इल्हाम और गैबदानी भी मुस्तकबिल की जहत या माजी की जहत में जाकर वहाँ के हालात से आगाही हासिल करने के नाम ही हैं। नाज़रीन, एक और साइंसी मुहक्किक लिखते हैं, जिस तरह एक कुव्वत दूसरी में तब्दील हो सकती है, रोशनी गर्मी का और गर्मी हरकत का रूप इख्तियार कर लेती है, और जिस तरह आलम असीर यानी कॉस्मिक वर्ल्ड यानी आलम बरज़ुख है में असीरी ताकतों की छोड़ी हुई लहरें हम तक पहुँचकर सुकून, मुसर्रत, तजवीज़ या फिर बेचैनी में तब्दील हो जाती है, इसी तरह इंसानी आमाल असीर आलम मिसाल में मुख्तलिफ सूरतें इख्तियार कर लेते हैं। उम्दा आमाल हसीन फूलों, खुशनुमा महलों, दिल नवाज नगमों, गुनगुनाते हुए चश्मों और दिलकश हसीनाओं में तब्दील हो जाते हैं, और मकरूह आमाल फोड़ों, नासूरों, कांटों, सांपों और अंगारों की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। नाज़रीन, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने बांगे दरा में सैर फलक के उन्वान से एक नज़म लिखी है। वो सैर फलक को गए और फिरते फिराते जहन्नम पे जा निकले। देखा कि जहन्नम बिल्कुल खाली है, इसमें एक चंगारी तक मौजूद नहीं। फरिश्ते से पूछा, ये किस किस्म की जहन्नुम है? उसने जवाब दिया, अहले दुनिया जो यहाँ आते हैं अपने अंगार साथ लाते हैं। साइंसी मुहक्किकीन इकबाल का तख़य्युल और मुख्तलिफ फ़लासफ़ा के नज़रियात किसी हद तक दुरुस्त हैं, लेकिन कुरान मजीद के नज़दीक ये महज ख्याल व अफकार नहीं, बल्कि अफलाक और उनमें मौजूद जन्नत और दोज़ख ऐसी हकीकतें हैं जो बाकायदा वजूद रखती हैं। कुरान करीम में जन्नत और दोज़ख के मनाज़र जा बजा मिलते हैं। खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या मेराज इसका वाज़ेह सबूत है। और जैसा कि मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि अल्लाह ताला के मुक़र्रबीन में से बहुत से औलियाए किराम रहमतुल्लाह अलैहिम ने भी अपनी अपनी बसात के मुताबिक इनका मुशाहदा किया है। बहसीयत मुसलमान इन हक़ाइक़ पर हमारा ईमान व यकीन है।
नाज़रीन, आलम बरज़ख, आलम लाहूत, आलम मलकूत, आलम जबरूत, आलम नासूत और इनमें मौजूद 7 जन्नतों और 7 दोज़खों की मुकम्मल तफसील मैंने अपनी किताब चश्मे तसव्वुर में दर्ज कर रखी है। आपको इत्तेफाक हो तो उसका मुताला ज़रूर फरमाएं। नाज़रीन, ये जन्नत जिसका जिक्र इतनी तफसील से मैंने किया है, ये जन्नत किसके लिए है? किन लोगों को ये शर्फ हासिल होगा कि वो इसमें दाखिल हों? इसका जिक्र आइंदा आयत में इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगली नशिस्त में करूँगा। आज के लिए इतना ही। आपसे इजाज़त। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।